After the completion of scatter diagram method for the calculation of correlation, now let's proceed towards the second method and the last method, because already I've told you Spearman's ranking correlation is no more there in your syllabus. So this is Karl Pearson's coefficient of correlation. Take out your books and start doing the underline to the same. This is also known as product moment correlation coefficient. तो बेटा पहली बात तो इसका अंडरलाइन करना है. In case question में आता है that calculate coefficient of correlation using product moment correlation coefficient. So directly it should be clicked in your mind that this is asking for Karl Pearson's coefficient of correlation. Don't be confused here because one more name is here of the same that you can see above. It gives a precise numerical value of the degree of linear relationship between two variables x and y. As previously I have told you कि correlation एक ऐसी calculation है जहां पे कि हम दो तरह के variables में कुछ connectivity या relations को find out करते हैं. So exactly जो हमारा ये वाला method है that is Karl Pearson's coefficient of correlation. यहाँ भी हमें क्या करना है, we will find the relationship between two variables. So one will be x and another will be y. Okay. It is important to note that Karl Pearson's coefficient of correlation should be used only when there is a linear relationship between the variables. Linear relationship, जहाँ पे कोई linear correlation होगा, as scatter diagram में मैंने आपको बताया था बेटा कि दो तरह की इसके अंदर situations देखी थी हमने. The one was of no correlation, जहाँ कोई relation ही नहीं है. तो ऐसी इस तरह के सर्कमस्टांसेस में हमें रिलेशन फाइंड आउट करने की रिक्वायरमेंट भी नहीं है. इफ यू आर रिकॉलिंग, आई गिव यू द एग्जांपल ऑफ द वन वेरिएबल इज लिटरेसी रेट ऑफ डिफरेंट स्टेट्स इन इंडिया एंड अनदर इज द सिचुएशन ऑफ मॉनसून. तो इनमें आपस में कोई कनेक्टिविटी ही नहीं है बेटा. तो ऐसी कनेक्टिविटीज में कोरिलेशन को भी फाइंड आउट करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है. व्हेन देयर इज अ नॉन लीनियर रिलेशनशिप और रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, then calculating the Karl Pearson's coefficient of correlation can be misleading. That means the answer that will mislead us. Mislead का मतलब क्या है, अगर इस तरह के फिगर्स को हम फर्दर किसी यूज में लेते हैं तो उससे फाइंड आउट होने वाले जो रिजल्ट्स है वो हमारे लिए यूजफुल नहीं होंगे. Thus, if the true relation is of the linear type as shown by the scatter diagram, we have gone through already the scatter diagram. तो वहां जिस तरह से हमने linear situations देखी थी किस तरह से बेटा, in this way it is of positive, जहां पे सारे पॉइंट्स हमें एक ही लाइन में दिखते हैं linear form में. This can be of the negative, and the one thing is more, if the dots are getting dispersed then also we can find out correlation, maybe in the negative as well. Okay, but if the situation is something like this, then we cannot calculate correlation using this method. Is it clear? Now for the calculation and some different information related to tabulation of degrees of correlation, let's proceed towards the whiteboard. So this you can see, this is the degrees of correlation. As we get the answer of the calculation, we have to give the specified degree to the same. जैसे बेटा इफ यू रिकॉल हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स में जब क्वेश्चंस को सॉल्व किया था रिलेटेड टू डिमांड एंड सप्लाई, तो वहां भी बेटा हमने कुछ वहां पे उनको डिग्रीज दी थी. डिग्री इन द सेंस हमने ये कहा था दैट इज इट परफेक्टली, इज इट इम्परफेक्टली. उस तरह से हमने वहां पे भी कुछ डिग्री से बाइफर्गेशन किया था आंसर्स को. ठीक है, कि जो डिमांड है वो कैसी सिचुएशन में उसकी 5 डिग्रीज हमने पढ़ी थी. तो वैसे बेटा यहाँ कोरिलेशन आता है और डिपेंड करता है कि जो आने वाली डिजिट है वो कौन सी रेंज में आ रही है. तो जिस भी रेंज में होगी अकॉर्डिंगली वैसे वहां पे डिग्री प्रोवाइड करेंगे. अब देखते हैं बेटा, ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू दैट वी हैव टू टाइप्स ऑफ कोरिलेशन. द वन इज पॉजिटिव एंड द अनदर इज नेगेटिव. ये चीज मैं आपको स्कैटर डायग्राम में भी बेटा बता चुका हूं. आंसर दो तरह से आ सकते हैं. सी इफ द आंसर इज 0, हमने जो भी कैलकुलेशन किए फाइनली वी गेट द प्रोडक्ट एज 0. अब 0 पॉजिटिव नेगेटिव तो बेटा होगा नहीं, सो डिग्री विल बी एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन. जैसे ही हमारा आंसर आता है 0, इन ब्रैकेट वी कैन मेंशन देयर इज एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन. ठीक है बेटा. नेक्स्ट आता है इफ द आंसर कम्स परफेक्टली 1. एज आई टोल्ड यू दैट आंसर कैन बी 1 और लेस देन 1. इज इट ओके? इफ द आंसर इज
+1, सारी कैलकुलेशन से हमें पता चलता है that answer is +1, then we can give the degree perfectly positive correlation. A perfect positive correlation will be the degree. In case the answer is -1, in that situation the degree will be perfect negative correlation. The one is perfect positive correlation and another is perfect negative correlation. Is it fine? Next is, if the answer comes in the range between 0.75 to 1, अगर इस रेंज के बीच में हमारा कोई भी वैल्यू गेन हमें होता है तो ठीक है, तो पहले तो जज करेंगे दैट इज इट इन प्लस और इन माइनस. इफ इट इज इन प्लस then the degree will be high positive correlation. If it is in plus in this range between this, so the degree will be high positive correlation, and the same range is covered under -1, then the degree will be high negative correlation. Is it clear? Now the next is, if the answer comes between the range of 0.25 to 0.75 in plus. Getting my point? If the answer is in positive way, then the degree will be moderate positive correlation and moderate negative correlation in case the answer is in minus. Is it clear? And the very last degree, that is what? Low degree. That is, if the answer comes in the range between 0 to 0.25 in plus and 0 to 0.25 in minus, then the degree will be low positive correlation and low negative correlation as well. तो डिपेंड करता है बेटा हमारा क्वेश्चन का आंसर किस तरह से आता है. जो भी हमारी कैलकुलेशन है, ऑलरेडी टोल्ड यू कि अगर आंसर 1 से एक्सीड करता है दैट मींस वी हैव कमिटेड सम ऑफ द मिस्टेक, और अगर इस तरह से हमारा आंसर मे बी 1 और बिलो 1 कवर हो जाता है दैट मींस हमें वहां पे डिग्री को स्पेसिफाई करना जरूरी होगा, क्योंकि समटाइम्स यू नो डिग्री का बेटा हाफ मार्क होता है हमारा. ठीक है, अगर हम डिग्री स्पेसिफाई नहीं करते हैं तो हाफ मार्क्स हमारे रिड्यूस हो जाते हैं. सो ये टेबल आपको कॉपी करनी है अपनी नोटबुक में बेटा. अब चलते बेटा हम क्वेश्चंस की तरफ कि किस तरह से कोरिलेशन में हमें कुछ वैल्यूज डिजिट्स गिवन होंगी और उससे हम कोरिलेशन को फाइंड आउट करेंगे अंडर कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन. सो हियर वी गो विद द different methods of the calculation of correlation using the method Karl Pearson's coefficient of correlation. Under this method we have different 3 slots, as already we have gone through the same thing. हम पहले भी बेटा मेथड्स को डिस्कस कर चुके हैं, बट हाँ वहां हमारे टॉपिक्स कुछ अलग हुआ करते थे. The first is again direct method, second indirect, shortcut और assumed mean method. We know very well कि all these 3 methods are same, these 3, okay? Actually these are the different names, fine. And the last is step deviation method. So let's start with the method number 1, that is direct method. So at first the formula for the calculation of correlation using this direct method is, वैसे तो बेटा आपको इन तीनों मेथड्स के बहुत सारे अलग अलग तरीके फॉर्मूले मिलेंगे, किसमें कुछ डेविएशन आ जाएगा, कहीं पे कुछ आपको एसडी वाली कैलकुलेशन मिल जाएगी, बट हम यहाँ जो फॉर्मूले डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत सिंपल फॉर्म वाले होंगे. आई मीन जितने भी अलग तरह की कैलकुलेशन है, जिस भी तरह के आपको अलग अलग फॉर्मूले के स्लॉट्स मिलेंगे, उनमें से जो सबसे सिंपल और आइडल है जिसकी कैलकुलेशन हम इजी गोइंग कर सकते हैं और उनसे रिलेटेड जो टर्म्स है वो ऑलरेडी हम अपने प्रीसीडिंग चैप्टर्स में भी डिस्कस कर चुके हैं. तो मैं बेटा आपको वही वाले फॉर्मूले यहाँ बताने जा रहा हूँ. जैसे डायरेक्ट मैथड का जो फॉर्मूला है दैट इज R is equals to sigma xy upon under root sigma x square multiply by sigma y square. ठीक है, मे बी आपको कुछ ऐसा भी मिल सकता है, sigma xy upon under root sigma x square multiply by sigma y square. सो इसमें कोई डिफरेंस वाली बात तो है नहीं, बस क्या है बेटा कि यहाँ पे होल अंडर रूट ले लिया, लेकिन यहाँ पे इस चीज को ब्रेक कर दिया, सिग्मा एक्स स्क्वायर और एक्स वाई स्क्वायर को दोनों को ब्रेक कर दिया. सो ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है बेटा. तो ये आपका फॉर्मूला है. अब देखिए यहाँ जो हमें स्मॉल एक्स एंड स्मॉल वाई गिवन है, इस चीज पे फोकस कीजिएगा बेटा. यू कैन सी ये जो अल्फाबेट्स हैं ये स्मॉल लेटर्स हैं, तो इन स्मॉल्स को कैसे कैलकुलेट किया जाएगा. सो हमें क्या करना है, हमें कैपिटल एक्स गिवन होगा, इस x में से माइनस करना होगा x बार.
देन वी गेट स्मॉल एक्स। वैसे तो dx भी यही होता है, लेकिन यहां पे इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे x से। यही चीज मैं आपको बता रहा हूं कि कहीं ना कहीं किसी बुक में आपको ऐसा भी मिल सकता है सिग्मा dx dy, सो डोंट बी कंफ्यूज, क्योंकि डी वाली जो कैलकुलेशन है मैं आपको सेकेंड और थर्ड मेथड में बताऊंगा, ठीक है बेटा। देन इसका x से x से मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, इट विल बी एक्स स्क्वायर, जो डिजिट्स है उनका सम टोटल कर देंगे, एज सेम एज व्हाट विल हैपन विद y माइनस y बार करेंगे, सो दे वी विल गेट स्मॉल y, देन स्मॉल y मल्टीप्लाई बाय स्मॉल y इज इक्वल्स टू y स्क्वायर, एंड देन इसका सम टोटल कर देंगे, और जो भी वैल्यूज होंगी फॉर्मूले में पुट करेंगे कैलकुलेशन, और वी विल गेट द आंसर। क्लियर? तो चलिए बेटा अब हम इसका इक्वेशन करते हैं। एक चीज बेटा आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अभी तक तो जितने भी हमने चैप्टर्स पढ़े हैं स्टैटिस्टिक्स में रिलेटेड टू दीज एनालिसिस, वहां आपने एक चीज नोटिस की बेटा, वी ऑलवेज गेट 3 डिफरेंट सीरीज, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस। बट ये हमारा एक ऐसा चैप्टर बेटा जहां पे हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही सीरीज है, और वो कौन सी है? इंडिविजुअल सीरीज। डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस यहाँ पे नहीं होगी। दैट मीन्स हमें यहाँ पे क्या गिवन होगा बेटा? डबल एक्स प्रोवाइडेड होगा, मतलब जो एक्स वेरिएबल्स हमें इंडिविजुअल सीरीज में मिलते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे 2 अलग अलग इंडिविजुअल सीरीज होंगी, ठीक है, जिसमें एक को हम x कंसिडर करेंगे और एक को हम y कंसिडर करते हैं। सो हियर यू कैन सी द क्वेश्चन इज x एंड y। क्वेश्चन विल बी ऑलवेज सेम, दैट कैलकुलेट कोरिलेशन यूजिंग दैट मेथड। इन केस अगर मेथड स्पेसिफाइड नहीं होता, सो वी हैव द चॉइस विद अस, हम कोई भी मेथड उसमें यूज कर सकते हैं। सो हियर आर सम ऑफ द डिजिट्स, द वन इज 165, 166, 167, 168, अगेन 167, इंडिविजुअल सीरीज से रिपीट हो सकता है, 169, 170, 172. Second, the y digits are 167, 168, 165, 172, 168, 172, 169, and the last is 171. ठीक है बेटा, ये मैंने बीच में गैप इसलिए दिया है क्योंकि यहाँ पे भी हम कैलकुलेशन करेंगे इससे रिलेटेड ही, तो उसके लिए स्पेसिफिक हमारे पास गैप होना चाहिए। वैसे तो क्या होता है कि x और y को बिल्कुल नियर बाय लिख लिया जाता है और इनसे रिलेटेड डेविएशंस आगे कर लिए जाते हैं, बट आई होप दिस इज अ सिंपल वे कि x को हम यहीं पे फ्री कर देंगे, y को यहाँ फ्री कर देंगे, और देन उसके बाद हम फॉर्मूला लगा के कैलकुलेशन इजी गोइंग कर सकते हैं। अब देखिए बेटा, एज यू नो दैट दिस इज इंडिविजुअल सीरीज, यू कैन सी x वेरिएबल्स एंड दीज y वेरिएबल्स, फ्रीक्वेंसी का कोई रोल नहीं बेटा यहाँ पे, ठीक है, तो दोनों ही x होते हैं ये। अब हमें क्या करना है यहाँ पे, इससे सबसे पहले मीन कैलकुलेट करना है। मीन क्यों करना है बेटा? मैंने आपको बताया दिस इज इंडिविजुअल सीरीज एंड वी आर यूजिंग दैट डायरेक्ट मेथड। इज इट क्लियर? तो डायरेक्ट मेथड के लिए हमें सबसे पहले चाहिए होगा मीन की कैलकुलेशन, और इंडिविजुअली दोनों का हम सेपरेट मीन कैलकुलेट करेंगे। जैसे यहां पे हम करेंगे x बार इज इक्वल्स टू सिग्मा x अपॉन n, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? सिग्मा x चाहिए, है ना। हमें अगर फॉर्मूले में सिग्मा x की वैल्यू चाहिए तो हमें पहले इसका सम टोटल करना होगा, एंड द टोटल इज 1344। आप जब इन सारी डिजिट्स का टोटल करेंगे सो यू विल गेट 1344, दैट इज 1344। वैल्यू पुट करते हैं हम यहाँ पे 1344 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5 6 7 8 इज व्हाट? नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है, क्योंकि हम इंडिविजुअल सीरीज को डिस्कस कर रहे हैं, इज इक्वल्स टू 168। ओके, दिस इज द वैल्यू ऑफ व्हाट? x बार। सबसे पहले भी बेटा हमने x बार को कैलकुलेट किया है, अब आता है x माइनस x बार। द कैलकुलेशन इज वेरी सेम, जैसे कि भी हमने इससे प्रीसीडिंग चैप्टर में डिस्कस किया था मेजर्स ऑफ डिस्पोजल में, वहां भी में x माइनस x बार करना होता था, वही चीज हम यहां पे करेंगे। तो यहां से जब हमें वैल्यू मिलेगी दैट विल बी नोन एज स्मॉल x। तो बेटा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप कैपिटल और स्मॉल का ध्यान अच्छे से रखिएगा। सो 165 माइनस 168 माइनस 3, 166 माइनस 168 माइनस 2, 168 minus 167 minus 1, here it will be 0, again minus 1, 167 minus 168, 169 minus 168 as plus 1, then
+2 एंड अगेन +2। हो गया बेटा x तक। अब करेंगे हम एक्स स्क्वायर, क्योंकि आपने देखा है फॉर्मूले में हमें क्या चाहिए, सिग्मा एक्स स्क्वायर की वैल्यू, तो हम इसका स्क्वायर करेंगे। 3 स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 4 1 0 1 1 4 एंड 4। इज इट ओके चिल्ड्रन? तो हमने सबसे पहले x से x बार कैलकुलेट किया, x बार के बाद x माइनस x बार किया, सो वी गेट द वैल्यूज ऑफ स्मॉल x एंड देन स्क्वायर ऑफ दिस x स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब आते हैं y पे। सेम प्रोसेस हमें y पे भी इंप्लीमेंट करना होगा। ये जो प्रोसेस हमने यहाँ पे x पे इंप्लीमेंट किया है, सिमिलर विल बी डन ऑन y एज वेल। तो वही सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना होगा सिग्मा y, क्योंकि हमें यहां पे भी कैलकुलेट करना है y बार इज इक्वल्स टू सिग्मा y अपॉन n। तो सिग्मा y की वैल्यू देखते बेटा कि इसका सम टोटल आता है 1352। 1352 इज द टोटल। सो 1352 अपॉन n का n इज इक्वल्स टू क्या है 8 एंड हियर वी गेट 169। इज इट ओके बेटा? हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आ गई इसकी 169। अब चलते हम इसमें यही प्रोसेस इंप्लीमेंट करेंगे, y माइनस y बार इज इक्वल्स टू स्मॉल y, y माइनस y बार इज इक्वल्स टू स्मॉल y। 167 माइनस 169 माइनस 2 माइनस 1, 165 माइनस 169 इज इक्वल्स टू माइनस 4, 172 माइनस 169 प्लस 3, 168 माइनस 169 माइनस 1, 172 प्लस 3, 169 माइनस 169 0, 171 माइनस 169 प्लस 2। ओके, देन y स्क्वायर, 2 स्क्वायर 4 1 16 9 1 9 0 एंड देन 4 स्क्वायर हो गया बेटा। आपने नोटिस किया होगा बेटा कि हमारा जो फॉर्मूला है दैट इज व्हाट r इज इक्वल्स टू सिग्मा एक्स वाई अपॉन अंडर रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय सिग्मा वाई स्क्वायर। तो अभी तक हमारे पास कौन कौन सी वैल्यूज आ चुकी हैं, सिग्मा एक्स स्क्वायर आ जाएगा जब हम इन सारी डिजिट्स का ऐड करेंगे, सिग्मा वाई स्क्वायर आ जाएगा जब हम इन सब डिजिट्स का ऐड करेंगे, एंड व्हाट अबाउट सिग्मा एक्स वाई, ये क्या है बेटा, ये कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? सो इट इज सो सिंपल कि जो आपको यहाँ पे x गिवन है, इस x की वैल्यूज को आप इन y की वैल्यूज से मल्टीप्लाई करेंगे, सो हियर यू विल गेट द वैल्यू ऑफ एक्स वाई। क्लियर? तो आपको स्मॉल x एंड स्मॉल y को मल्टीप्लाई करना है बेटा, कैपिटल को मत करना, ठीक है, स्मॉल वाले को करना है। सो -3 मल्टीप्लाई बाय -2 इट विल बी +6, -2 एंड -1 +2, -1 -4 +4, 0 multiplied by 3 it will remain 0, 1 -1 multiplied by -1 +1, +1 multiplied by +3 3, 2 multiplied by 0 it is 0 and +2 multiplied by +2 is 4। Got it everyone? तो यहाँ बेटा हमने इन सबका मल्टीप्लिकेशन कर लिया है। नाउ द नेक्स्ट वन इज ऑफ द सम टोटल्स। अब हम इनके सम टोटल्स करेंगे बेटा। द वन विल बी ऑफ सिग्मा एक्स स्क्वायर, अनदर विल बी सिग्मा वाई स्क्वायर एंड द लास्ट विल बी सिग्मा एक्स वाई स्क्वायर, क्योंकि इसकी वैल्यू भी हमें यहाँ पे फॉर्मूले में रिक्वायर्ड है। सो द टोटल्स आर, here you will get 36 sigma x square and sigma y square is 44 and the last is 24. These are the values beta. अब चलिए इन values को put करते हैं यहाँ फॉर्मूले में and let's see what will be the calculation for the xy. This is your sigma xy, the total is 24 upon under root sigma x square, the value is 36, multiply by sigma y square, the value is 44 is equals to 24 upon, अब हम एक काम करते बेटा, पहले इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 1584 इट इज इन अंडर रूट। क्लियर बेटा? हमने क्या किया, 36 और 44 को मल्टीप्लाई किया, व्हाट द वैल्यू वी गेट वो हमने यहां लिखी। अब करते हैं इसका अंडर रूट,
So 24 upon the value will be 39.79. 24 upon 39.79 और जब हम यहाँ डिवाइड करते हैं सो वी गेट 0.603. इट इज 0.603. आप देख रहे हैं बेटा जो हमारे पास वैल्यू आई है दैट इज n प्लस. आर की वैल्यू प्लस में कहीं नेगेटिव साइन है ही नहीं कैलकुलेशन में, सो इट इज पॉजिटिव. और अगर हम बात करें कि हम इसको डिग्री कौन सी देंगे, सो इट इज कमिंग द रेंज ऑफ व्हाट, सेकंड, दैट इज मॉडरेट. तो हमारे पास जो आंसर है दैट इज मॉडरेट पॉजिटिव कोरिलेशन. ये हम यहां पे डिग्री देंगे इसको. मॉडरेट पॉजिटिव कोरिलेशन. ठीक है, दिस डिग्री विल बी गिवन और इस तरह से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है. आई रिपीट द मेथड अगेन. वी विल बी हैविंग एक्स एंड वाई वैल्यूज. ठीक है, सबसे पहले x से x बार कैलकुलेट किया जाएगा. फॉर्मूला इज हियर विद यू. देन स्मॉल x कैलकुलेट होगा x माइनस x बार से. इन सभी वैल्यूज को स्क्वायर होगा. y में भी सेम ट्रीटमेंट होगा. एट फर्स्ट वी विल हैव टू डू द सम टोटल एंड देन y bar will be calculated. y minus y bar will be done. We will get small y. Then square of y will be there. Then xy, we will have to multiply these values of x and y, so we will get the total of sigma xy. Formula is there that sigma xy upon under root sigma x square multiply by sigma y square. Treatment किया जाएगा यहाँ पे इनका total और then we get the answer in this way. Is it okay? So this was only math number 1 related to Karl Pearson's coefficient of correlation. Now let's proceed towards the math number 2.